Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel SNEPS Biology. So, here comes your first practice set of zoology for your Common PG Entrance Test 2023. ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं ये सब आपको सारे के सारे जो PG एंट्रेंस टेस्ट हैं in the subject of life science, in which includes your zoology, botany, microbiology, biotechnology, bioinformatics as well as your environmental science, ये सब में आपको हेल्प करेंगे. ओके तो हम लोग जो प्रैक्टिस सेट रिलीज़ करेंगे वो एक एक सब्जेक्ट में रिलीज़ होगा. जैसे कि जूलॉजी का रिलीज़ होगा, एनवायरमेंटल साइंस का होगा, माइक्रोबायोलॉजी का होगा, बॉटनी का होगा. ओके तो इस तरह आपका रिलीज़ किया जाएगा सेट्स. एंड आई होप दिस सेट्स विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल फॉर योर एग्ज़ाम्स. और ये सेट के साथ साथ आप अपना पढ़ाई भी करते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, थ्योरीज पढ़िए, सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस in your entrance examination. Okay, so let's start. Question number 1. Animals belonging to phylum Echinodermata are closer to chordates than other invertebrate phyla. Which one of the following reasons can account for this relatedness? Okay, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो animals phylum Echinodermata से belong करते हैं, Echinodermata के हैं, they are closer to chordata as compared to other invertebrate phylums. Okay, so यहाँ पे कौन सा सही रहेगा ये रिलेटेडनेस को अगर हम लें. सो ऑप्शन 1 है हाईली इवॉल्व्ड नर्वस सिस्टम, रेडियली सिमेट्रिक बॉडी प्लान, ड्यूटेरोस्टोमिक डेवलपमेंट, वेल डेवलप्ड मसल्स. ओके सो कंसिडरिंग योर ड्यूटेरोस्टोमिया, right, what does it mean? It is a group of animal which include the Echinodermata, Chordata, Cetognatha and Brachiopoda. ओके आपके Echinodermata में क्या क्या आएंगे? स्टारफिश, सी अर्चिन्स. फिर Chordata में आपका लैंसलेट्स, राइट, वर्टिब्रेट्स. और Cetognatha में आपका आएंगे एरोवर्म्स. Brachiopoda में लैम्प शेल्स. ये सब आते हैं. ओके दीज आर क्लासिफाइड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ योर of their embryological development and by their molecular criteria, right? So during the development the mouth of deuterostomes develop from the opening into the embryonic gut other than the blastospore. Okay, it develops into the anus, right? So the xylem, what is xylem? Xylem is the fluid filled body cavity which is lined with mesoderm, right? So the xylem develops from bud of the embryonic gut, right? So a number of deuterostomes have distinctive larval forms and the deuterostomia constitute one of these two divisions of the coelomates, that is animals which have the coelom are known as what? Coelomates, right? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, दैट इज ड्यूटेरोस्टोमिक डेवलपमेंट. ओके विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ Echinodermata which make them closer to the chordates than other invertebrate phyla. Clear? So answer is option C. Okay, next आपका क्वेश्चन नंबर 2. In a chemical reaction where the substrate and the product are in equilibrium in solution, what will occur if an enzyme is added? तो एक chemical reaction हो रहा है जहाँ पे substrate and products they are in equilibrium in a solution. Okay, तो what will happen if an enzyme is added to it? Clear? So option A, the equilibrium of the reaction will not change. B, there will be a decrease in product formed. C, additional substrate will be formed. D, the free energy of the system will change. Okay, तो यहाँ पे दिया है कि chemical reaction एक है जो कि already equilibrium में है. So in a chemical reaction where the substrate and product are in equilibrium in solution and enzyme is added, then what happens? The equilibrium of the reaction will not change. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Tay-Sachs disease is a human genetic disorder that is associated with
डिफेक्ट्स इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus या फिर लाइसोसोम, इट विल बी योर लाइसोसोम। ओके, ऑप्शन डी इज द correct answer. So considering your Tay-Sachs is an autosomal recessive disease which is caused by mutations in both the alleles of gene hexa, okay, HEXA, okay, on the chromosome number 15. Clear? 15 number chromosome. Understood? And this hexa codes for the alpha subunit of the enzyme beta hexosaminidase A. ओके, बीटा हेक्सोस अमीनिडेज ए एंजाइम के लिए हेक्सा कोड करता है। ओके, उसके अल्फा सब यूनिट ये जो होता है ना बीटा हेक्सोस अमीनिडेज ए, उसके अल्फा सब यूनिट के लिए हेक्सा कोड करता है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। क्लियर? सो दिस एंजाइम इज फाउंड इन लाइसोसोम एंड लाइसोसोम इज द ऑर्गेनेल व्हिच ब्रेक्स डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर रिसाइकलिंग बाय द सेल, राइट? सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, increase in the existent population of grey peppered moth, that is Biston betullaria, during industrial revolution in Britain is an example of which one of the following evolutionary processes? Okay, so यहाँ पे ऑप्शंस हैं न्यूट्रल सिलेक्शन, फिर डिसरप्टिव सिलेक्शन, फिर डायरेक्शनल सिलेक्शन, देन स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ओके, सो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो कब होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन? इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स विथ ट्रेट्स on one side of the mean in their population survive better or reproduce more than those on the other. Okay, clear? So it has been demonstrated many times in natural population that using both the observational and experimental approaches, directional selection is the process which comes most easily to mind when thinking of natural selection, and it is the form of selection which has taken place in the best known example of evolution. For example, in case of your peppered mouth, in case of considering your antibiotic resistance, finch beaks. Clear? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डायरेक्शनल सिलेक्शन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट? ओके, लंग सर्फेक्टेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ब्रोंकाई, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, प्रिवेंट अल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन, या फिर एड इन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज। ओके, सो लंग सर्फेक्टेंट्स किससे बनते हैं? फ्रॉम your animal lung extract, right? So these lung surfactants are a complex with a unique phospholipid and protein composition, and its specific function is to reduce the surface tension at the pulmonary air liquid interface. Okay, so natural surfactants which are produced by the alveolar cells in the lungs, they line mainly the alveoli and small bronchioles. As a result, they prevent the alveoli from collapsing, and lung surfactant makes it easier for oxygen to penetrate the lung surface lining and move into the blood. Okay, so without the lung surfactant, what will happen? It would be extremely hard for breathing. Okay, and the transfer of oxygen through the surface that lines the lungs would be very much difficult. क्लियर? सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी फंक्शन लंग सर्फेक्टेंट का क्या होगा? सो आंसर विल बी योर ऑप्शन सी। क्लियर? इट प्रिवेंट alveoli from collapsing by decreasing the surface tension. Okay, option C is the correct answer. Clear? Next, question number 6. Which one of the following statement is not part of the classical Darwinian theory of evolution by natural selection? Okay, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं बैठ रहा है. ओके, विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिया हुआ है, राइट? देखेंगे, ए ट्रेट विच इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड विल गेट इनहेरिटेड बाय नेक्स्ट जनरेशन. ओके, फिर दिया है फिनोटिपिक वेरिएशंस एग्जिस्ट अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज. ये तो दिया हुआ था,
राइट, फिनोटाइपिक वेरिएशन एग्जिस्ट होते हैं। नंबर सी में है, ऑप्शन सी में है, इंडिविजुअल्स दैट बेस्ट फिट इनटू अ गिवन एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट जो है, राइट। फिर ऑप्शन डी, ईच पॉपुलेशन कैन रैंडमली एक्वायर अ डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट सूट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन के बारे में है। क्लियर, तो वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिट टेस्ट ये तो नेचुरल सिलेक्शन में वो दिए थे, राइट। बट जो ऑप्शन ए है, दैट इज अ ट्रेट विच इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड विल गेट इनहेरिटेड बाय नेक्स्ट जनरेशन, ये जो है दिस इज योर this is not the part of the classical Darwinian theory of evolution by natural selection. Okay, so यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, ये जो है, this is false. Okay, this is not the part. Clear? Next, come to question number 7. In a population which is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of occurrence of a disorder caused by recessive allele Q is 1 in 1100. The frequency of heterozygotes in the population will be. Okay, तो एक population जो कि आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, उसमें दिया हुआ है जो रिसेसिव अलील Q है, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है दैट इज 1 in 1100. क्लियर, तो यहाँ पे पूछा है कि हेटेरोजाइगोट्स में फ्रीक्वेंसी क्या होगा उस पॉपुलेशन में. क्लियर, तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे. ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि क्यू अलील जो है उसका फ्रीक्वेंसी है 1 in 1100, 1 in 1100. ओके, तो हमें पता है कि रिसेसिव अलील जो है उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस क्या होता है, क्यू स्क्वायर, राइट. सो क्यू स्क्वायर यहाँ पे है 1/1100. तो यहाँ से हम क्यू निकाल सकते हैं, राइट. आप खुद निकालोगे. क्लियर, मैं आंसर बता दूंगी, आप खुद निकालोगे. क्लियर, इट विल बी अराउंड 0.03. क्लियर, आप देख लेना. क्लियर, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे दे दिया है 1/1100, तो उससे हम क्यू निकाल लेंगे. फिर हमें पता है कि p प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है. तो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ q वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, दैट इज 1 माइनस q. ओके, तो वो आपको निकालना है. क्लियर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स आपको निकालना होगा. क्लियर, तो हमें पता है हेटेरोजाइगोट का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 2pq का वैल्यू जो होता है वो हेटेरोजाइगोट्स के फ्रीक्वेंसी होते हैं, राइट. सो 2 का तो वैल्यू 2 ही रहेगा, p का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, फिर q का वैल्यू यहाँ से निकला हुआ होगा, राइट. तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करके 2pq का वैल्यू निकालेंगे. ओके, दैट विल बी अराउंड योर 0.05. क्लियर, सो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर होगा. आप खुद निकाल के मुझे बताना, ओके, सही है या नहीं. अंडरस्टूड. फिर से बोल देती हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस कॉज्ड बाय योर रिसेसिव अलील क्यू. ओके, अलील क्यू का ऑकरेंस दिया हुआ है, मतलब क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, वो क्यू का वैल्यू नहीं है. अंडरस्टूड. तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू जो है दैट इज 1 in 1100, मीन्स 1/1100. ओके, फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. कैसे निकालोगे, 1/1100 का रूट ओवर कर दोगे, या फिर 1/1100 को आप डेसिमल में निकाल लो, उसके बाद उसका रूट ओवर निकाल लो. ओके, अंडरस्टूड. तो क्यू का वैल्यू निकल चुका है. उसके बाद हमें पता है कि क्या p प्लस क्यू का वैल्यू हमेशा 1 होता है इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम. ओके, तो यहाँ से हमें p का वैल्यू यहाँ से हमें p का वैल्यू मिल जाएगा, राइट. फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स जब निकालेंगे तब 2pq का वैल्यू हमें निकालना है. अंडरस्टूड. अगर यहाँ पे पूछता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ योर डोमिनेंट अलील, तो हम क्या निकालते, सॉरी क्यों नहीं, हम यहाँ पे निकालते p स्क्वायर. अंडरस्टूड. p स्क्वायर का वैल्यू हम निकालते अगर पूछता फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स, क्या, योर डोमिनेंट. क्लियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील अगर पूछता तो हम p स्क्वायर का वैल्यू निकालते. लेकिन यहाँ पे हेटेरोजाइगोट्स पूछा है, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 2pq व्हिच विल बी अराउंड 0.058.
Understood? Clear? Next, come to question number 8. The enzyme amylase can break alpha glycosidic linkages between glucose monomers. Hence, amylase can digest which one of the following carbohydrates? Okay. So देखो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. जो amylase एंजाइम है, we know that it can break the alpha glycosidic linkage between the glucose monomers, right? तो इनमें से कौन से कार्बोहाइड्रेट को वो डाइजेस्ट कर सकता है? सेल्यूलोज, स्टार्च, काइटिन या फिर जाइलेंस? इट विल बी योर स्टार्च. क्लियर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. अ फीमेल स्पॉटेड सैंडपाइपर courts males repeatedly. This behavior can be explained by the term polyandry, polygyny, monogamy या फिर sexual cannibalism. Okay. So यहाँ पे क्या दिया है कि फीमेल जो है वो मेल के साथ रिपीटेडली कोर्टशिप पे रह रहा है. मतलब दिस इज द व्हाट? दिस इज द phenomenon of your polyandry. Okay. So considering sequential polyandry, which is the most typical form of mating system, okay, that is sequential polyandry. Clear? It is here what happens, a female mates with a male, then lays eggs and then terminates the relationship with that male, okay, leaving him to incubate the eggs while she goes off to repeat this sequence with another male. Understood? So this is the phenomenon of your sequential polyandry. Understood? So यहाँ पे दिया है कि फीमेल जो है वो मेल के साथ रिपीटेडली कोर्टशिप पे रह रहा है, मतलब इट इज पॉलीएंड्री. अगर देता कि एक मेल के साथ कोर्टशिप पे रह रहा है, फिर एक दे रहा है, फिर वो रिलेशनशिप को टर्मिनेट करके फिर दूसरे के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे होता ही वो व्हाट? सिक्वेंशियल पॉलीएंड्री. अंडरस्टूड? क्लियर? समझे? तो कंसिडरिंग पॉलीएंड्री, योर एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पॉटेड सैंडपाइपर्स, ओके, जो दिया हुआ है यहाँ पे, और रेड नेक्ड एंड रेड फैलेरोप्स, ओके, जो कि नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देते हैं. दीज ब्रीड्स, ओके, दे शो पॉलीएंड्री. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. Malaria is caused by Plasmodium species, which is a parasite having complex life cycle. You know all about Plasmodium species, right? And its life cycle. +2 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. Okay, it is not a matter of discussion. Clear? So, the fusion between male and female gametocytes of Plasmodium happens inside. Okay, it is a simple question. कहाँ पे होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फ्यूजन? ह्यूमन लीवर, आरबीसी, मॉस्किटो मिडगट या फिर मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड? क्या होगा आंसर 10 का? इट इज ऑप्शन सी, दैट इज मॉस्किटो मिडगट. अंडरस्टूड? तो फिर से थोड़ा बता देती हूँ. जो मॉस्किटो मिडगट एंड सलाइवरी ग्लैंड, ओके, दीज आर द की एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द पैथोजेंस, ओके, लाइक योर प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स or considering your dengue virus, dengue. Okay, so the considering your malarial parasite Plasmodium, it has an absolute requirement for both a vertebrate as well as a mosquito host in order to complete its life cycle. Okay, so the mosquito midgut represents one of the most challenging environment for the survival and development of this Plasmodium, and thus also it is one of the most attractive sites for novel targeted malaria control strategies. Okay, जो malaria control के लिए करते हैं ना, जो भी strategy है वो इस पार्ट को, मतलब ये मिड गट, मॉस्किटो मिड गट, ओके, उससे टारगेट करते हैं. क्लियर? जहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फ्यूजन होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, योर क्वेश्चन नंबर 11. A cell in G1 phase has 16 chromosomes. The total number of chromatids that would be found per cell during metaphase 2 of meiosis are. Okay, तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. सोचना भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से आपको करना पड़ेगा. ओके, तो अगर एक सेल है जिसमें मियोसिस 1 हो रहा है, क्लियर, तो मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं, राइट? सो ईच सेल विल हैव
your 8 chromosomes. Then during your metaphase 2 में, मेटाफेज 2 में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन एट द मेटाफोरिक प्लेट, राइट, एंड क्रोमैटिड्स विल गेट सेपरेटेड. सो एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ईच सेल विल हैव 16 क्रोमैटिड्स. यहाँ पे पूछा है क्या, क्रोमैटिड्स कितने होते हैं. क्लियर. तो क्या होगा, हमें पता है ईच क्रोमोसोम हैज हाउ मेनी क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड्स, राइट. तो मेटाफेज प्लेट पे अगर आ रहे हैं वो, तो क्या होगा, we will have 16 chromatids. okay, so answer will be 16. यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल G1 फेज में है जिसमें 16 क्रोमोसोम है. क्लियर. और मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस में कितने होंगे, तो पहले होगा क्या, मियोसिस 1 जिसमें 8 क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ हो जाएंगे क्रोमोसोम्स. ओके. और मेटाफेज 2 जब आएगा, मतलब मियोसिस 2, राइट, मियोसिस 2 में मेटाफेज 2 जब आएगा, तब क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन एट द मेटाफोरिक प्लेट, राइट. तो उसमें जो अलाइनमेंट होंगे, एक क्रोमोसोम का अगर 2 क्रोमैटिड्स हैं तो 8 क्रोमोसोम के कितने क्रोमैटिड्स होंगे, ऑब्वियसली 16 क्रोमैटिड्स होंगे. अंडरस्टूड. सो आंसर विल बी योर 16. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Indicate the correct group that contains a monosaccharide, a disaccharide and a trisaccharide. Okay, क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड. तो कौन से ग्रुप में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड है, देखते हैं. क्लियर. तो जो राइबोज है दैट इज अ मोनोसैकेराइड, राइट. लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड एंड रैफिनोज जो है वो ट्राइसैकेराइड है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. क्लियर. आप मुझे बताओ कि स्टैकियोस, रैफिनोज तो हम डिस्कस कर लिए, स्टैकियोस, मैनोज एंड ग्लूकोज. ओके, ये क्या है. क्लियर. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. आइडेंटिफाई द फूड बोर्न इलनेस दैट इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ओके, इनमें से क्या है जो बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है. ओके, नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. अंडरस्टूड. बॉटुलिज्म, लिस्टेरियोसिस, वाइब्रियोसिस या फिर सिस्टिसेरोसिस. क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन डी, सिस्टिसेरोसिस. तो सिस्टिसेरोसिस किससे होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके. Now come to question number 14. The primary function of polysaccharide attached to glycoproteins in animal cell membrane is to. Okay, जो polysaccharide glycoprotein में attached होता है in case of animal cell membrane, उसका primary function क्या है. Okay, option A, facilitate diffusion of molecules down their concentration gradient, maintain membrane fluidity at low temperature, मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ अ फ्लूइड मोजाइक मेम्ब्रेन, या फिर मेडिएट सेल टू सेल रिकॉग्निशन. ओके. सो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज सेल टू सेल रिकॉग्निशन को मेडिएट करना. क्लियर. तो थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, राइट. सो मेनी प्रोटीन्स, particularly those proteins who are destined for the secretion or insertion into the membrane are post-translationally modified. Okay, because of the attachment of carbohydrates. Remember this. Clear. They are post-translationally modified. Clear. And these proteins are usually attached through either your ASN, that is ASN and सेरीन. क्लियर. दीज साइड चेन्स, इनमें आपका या तो एसन साइड चेन होता है या फिर सर साइड चेन होता है, सेरीन साइड चेन होता है. ओके. सो कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशंस ऑन द प्रोटीन appear to be involved in recognition of the other binding molecules, prevention of aggregation during protein folding, protection from proteolysis and increased half life of the proteins. ओके, रिमेंबर दिस. क्या क्या काम है जो कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन होता है इन द प्रोटीन,
ओके वो क्या क्या काम करते हैं? फर्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ द अदर बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट, prevention of your aggregation during protein folding. Clear? Next, protection from proteolysis, and last one, increased half life of the proteins. Understood? In contrast to a protein sequence which is determined by the DNA template, sugars are attached to proteins by enzymes which recognize appropriate sites on the proteins and attach the sugars. Since there are many sugars which contain many functional groups that can survive as potential attachment sites. As a result, what happens? Polysaccharides attached to the glycoproteins has first and foremost function of mediating the cell to cell recognition. Understood? तो यहाँ पे cell to cell recognition mediate करते हैं. Clear? Now come to question number 15. Which one of the following statements is false with respect to phospholipids? Okay. First, phospholipids have amphipathic character. सही है. Phospholipids form the lipid bilayer of the cell membrane. ये भी सही है. Phospholipids form micelles in living system. And then some phospholipid molecules may contain a double bond in hydrophobic tails. Double bond तो हो सकते हैं, right? Phospholipids में. तो यहाँ पे जो option C है ये गलत है. Okay, so considering phospholipid structure, it prevents the formation of micelles because of the presence of two fatty acids, one of which is usually unsaturated fatty acid, which prevent your aggregation into a tight sphere. Instead, phospholipids form liposomes, okay, in which phospholipid molecules form a double layer, or which we call a bilayer, in a much larger sphere. Okay, due to presence of fatty acids, micelles cannot be formed by the help of phospholipids. Okay, so phospholipids don't form micelles in living systems. Option C is wrong. Okay, it is false. Clear? So इस प्रैक्टिस सेट में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. ओके, जो कल आने वाला है प्रैक्टिस सेट उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे. ओके, तो ये सिर्फ आपका शुरुआत है. ओके, हम अराउंड 300 क्वेश्चंस जूलॉजी के प्रिपेयर किए हैं जो कि वी विल रिलीज देम. क्लियर? सो 300 क्वेश्चंस फ्रॉम जूलॉजी विल बी डिलीवर्ड टू यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग. जो भी आपके सिलेबस में है, ओके, +3 में जो जो आप पढ़े हो वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे. ओके, अंडरस्टूड? जो आपका इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ कंसंट्रेशन रहनी चाहिए वो है आपका बायोकेमिस्ट्री, ओके, माइक्रोबायोलॉजी, योर डाइवर्सिटी, क्लियर, एंड योर जेनेटिक्स. अंडरस्टूड? और एक इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर इकोलॉजी, जिसमें से आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. अंडरस्टूड? और जो भी सेल स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी है वो तो बेसिक है, जो कि आपको पता होनी चाहिए. जो बेसिक उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस होते हैं उन स्ट्रक्चर के, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं. अंडरस्टूड? तो एक वीडियो हमारा है कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा एरिया आपको फोकस में रखना चाहिए, राइट? तो वो वाला जो वीडियो है वो मैं आई बटन में दे दूंगी. डू वॉच दैट वीडियो. ओके, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू. अंडरस्टूड? उस वीडियो में जो टॉपिक्स हम दिए हुए हैं उनको कवर कीजिएगा. ओके, विच विल बी हेल्पफुल टू यू. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए एंड डू लाइक आवर वीडियोज़, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस. थैंक यू.